हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो अगेन आई रीड द चैप्टर एंड आई एक्सप्लेन इट वंस आई हैव रेड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन. ठीक है. सो 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre found by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as the second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. Then it was my turn. I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and watching world, I said, तो 10th May की बात है. तो पिछले कुछ दिनों से ही वॉज बिसीज्ड, मतलब ही वॉज सराउंडेड बाय, उनके आसपास वही लोग थे, बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स. डिग्निटरीज मतलब दिग्गज लोग जो उनके रिस्पेक्ट्स देने आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन. एंड जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था वो आज तक का लार्जेस्ट गैदरिंग होता ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. एंड ये सेरेमनी हुई इन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर मतलब बिना रूफ का एक ओपन एयर जो होता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स के फॉर्म्स में रोज होते हैं फॉर सीटिंग. तो वो भी बने थे फ्रॉम द यूनियन बिल्डिंग्स के, जो यूनियन बिल्डिंग्स थे उसके बीच में ये था. एंड काफ़ी टाइम तक ये जो गद्दा था या जो सत्ता थी वो वाइट्स की थी, वो वाइट सुप्रीमेसी था. बट अब चीज़ें बदल रही थी. ये साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही थी. और उस दिन पर नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर ज़नानी. तो पहले जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डे क्लर्क, उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ. देन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे थाबो म्बेकी, उनका हुआ. और अब हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला की स्पीच. टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have, at last, achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो आज जो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इट इज़ टू कॉन्फर ग्लोरी, मतलब टू गिव ग्लोरी और टू तो टू प्रोवाइड ग्लोरी हियर टू दिस न्यू वन लिबर्टी, जो नई नई हमें आज़ादी मिली है. एंड ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था जो बहुत लंबा चल गया. बट इससे बाहर जब एक सोसाइटी आई है वो ऐसी बननी चाहिए जिस पे सारी ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत को नाज हो. एंड हम आउटलॉज थे. आउटलॉज मतलब वहाँ पर अपार्थाइड की पॉलिसी चलती थी, जहाँ पर वाइट्स वर सुप्रीम एंड ब्लैक्स को, जैसे इंडिया में कैसे आपने पढ़ा होगा कास्ट सिस्टम के बारे में, तो जैसे शूद्रों को ट्रीट किया जाता था वैसे वहाँ पर ब्लैक्स को ट्रीट किया जाता था. तो वहाँ पर कास्ट पे नहीं, स्किन कलर या रेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. एंड जो पॉलिसीज़ थी उनका अपार्थाइड पॉलिसीज़ कहते थे.
तो वो कहते हैं कि बट अब हमें एक बहुत रेयर प्रिविलेज मिला है कि हम बहुत सारे नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड को हम होस्ट कर रहे हैं अपनी ही ज़मीन पर. तो ही इज़ थैंकिंग जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं कि आप यहाँ पर आए, एंड दिस मीन्स अ विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. एंड वो कहते हैं कि हमने फाइनली वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, मतलब हमारी जो पॉलिटिकल आज़ादी को कर्ब किया गया था दैट वो हमने हटा दिया. एंड वी प्लेज, हम प्रण लेते हैं कि हम अपने लोगों को पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन इन सबसे दूर रखेंगे. एंड कभी नेवर अगेन, कभी नहीं ऐसा कुछ वापस होगा अफ्रीका के फ्यूचर में. सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट. तो ये ह्यूमन अचीवमेंट बहुत बड़ा है और ये ऐसे ही बरकरार रहेगा. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before, they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nosi Sikel, E Africa, and black singing Dies Them, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they one despised, they would soon know the words by heart. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people, regardless of their color of the skin. तो उनकी स्पीच वगैरह हुई. उसके थोड़ी देर बाद ही हवा में जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे उनका स्पेक्टेकुलर एरे, मतलब एक अच्छा बहुत इम्प्रेसिव फॉर्मेशंस वगैरह करके वो लोग बेसिकली दे वर मेकिंग फॉर्मेशंस एंड शोकेसिंग द ब्यूटी ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट्स वगैरह. एंड दिस वाज अ डिस्प्ले ऑफ नॉट ओनली पिन पॉइंट प्रिसीजन मिलिट्री फोर्स के कितना ब्यूटीफुल, कितना एक्यूरेटली फॉर्मेशंस बने हैं एंड हमारे पास मिलिट्री में कितना पावर है, बट ऑल्सो डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. तो जो मिलिट्री के लोग हैं ऐसा नहीं है कि वो अपना राज चलाएंगे, दे आर ऑल्सो लॉयल टू डेमोक्रेसी, दे वांट डेमोक्रेसी. एंड टू द फैक्ट कि नई गवर्नमेंट बहुत फ्रीली एंड बहुत फेयरली इलेक्ट हुई थी. एंड थोड़ी देर पहले ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो लोग थे, पुलिस के लोग, दे चेस्ट bedecked with ribbons, मतलब डेकोरेटेड विथ रिबन्स. तो इन लोगों ने सल्यूट किया नेल्सन मंडेला को. बट नेल्सन मंडेला ने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं ये भूल गया हूँ कि कुछ सालों पहले अगर यही लोग मुझे अगर अभी देख रहे होते तो मुझे अरेस्ट कर दिया होता इन्होंने, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सल्यूटिंग मी जस्ट बिकॉज आई एम अ ब्लैक. एंड फाइनली जो इम्पला जेट्स आए, शेवरॉन मतलब उनका जो वी शेप फॉर्मेशन होता है उसमें उड़ रहे थे, तो दे लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ डिफरेंट कलर्स, black, red, green, blue and gold, which is basically the colors of the new South African flag. And उस दिन दो national anthems गाए गए थे.
तो इनका नाम विद स्पेलिंग याद रखना. सो वन वॉज द सॉन्ग दैट द वाइट्स वर सिंगिंग एंड द अदर वॉज द वन दैट द ब्लैक्स वर सिंगिंग. और किसी को उस टाइम पे लिरिक्स याद नहीं थी पूरी, बट ही न्यू के सम डेज डाउन द लाइन सबको एट अ पॉइंट याद हो गई. एंड तो अब ऐसा उन्होंने बताया कि बेसिकली इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, डेकेड मतलब 10 years होता है, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में नेल्सन मंडेला के बर्थ के पहले जो वाइट स्किन लोग थे साउथ अफ्रीका में, इन्होंने खुद ने ही अपना एक खुद का गैंग बनाया है. एंड दे मेड दिस होल सिस्टम दैट दे वर सुपीरियर टू द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री, ऑफ देयर ओन लैंड. एंड इन्होंने खुद ने ही अपार्थाइड का पूरा सिस्टम खड़ा किया. एंड दैट वॉज द वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ जो उन्होंने खड़ी की. एंड अब फाइनली इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी they are finally able to get rid of it. And his own 8th decade as a man, मतलब वो खुद अपने 70s में है. एंड इस सिस्टम को उन्होंने ओवरटर्न कर दिया है. ओवरटर्न मतलब उसको पलट दिया गया है, वो अब नहीं है, उसको हटा दिया गया है. एंड नाउ सब लोगों के राइट्स एंड फ्रीडम कंसिडर हो रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द स्किन कलर. दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Braham Fishers, the Robert Sobukis of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. तो अब जो ये दिन आया है, आज़ादी का ये जो दिन आया है, ये दिस हैज़ कम बिकॉज ऑफ द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, जो भी सैक्रिफाइसेस त्याग किए हैं ऑफ ऑल दोज पीपल हु फॉट. एंड वो कह रहा है कि मैं इसे रीपे तो कर ही नहीं सकता. एंड मुझे इस दिन वापस ऐसा लग रहा है जैसा मुझे पहले कई दिनों पर लगा है कि मैं जो हूँ आई एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हेयर. मतलब ये मैंने अकेले ने नहीं किया है, ये इन सब लोगों की मेहनत है जिसका क्यूमुलेटिव एडिशन कर दो, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ. एंड उन्हें बहुत दुख हो रहा है. इस पेन मतलब इट इज़ पेनफुल फॉर हिम टू थिंक कि जो लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए, दे आर नॉट हियर टू सी व्हाट द सैक्रिफाइसेस एक्चुअली गॉट. कितना प्रॉस्पेरिटी एंड सो मच हैप्पीनेस एंड फाइनली जो फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट किया था उन्हें मिल गई है. हैड ब्रॉट मतलब हैड ब्रॉट अबाउट. तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड है, उसने काफ़ी ज़्यादा गहरा घाव छोड़ दिया इस कंट्री पर, इस कंट्री के लोगों पर. एंड काफ़ी साल लगेंगे लोगों को इससे उभरने में. एंड बट एक चीज़ है कि जो इतना ऑपरेशन, इतनी ब्रुटैलिटी जो उन्होंने देखी, इससे बहुत सारे महात्मा जीवित हुए. तो यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं. आई एम टेलिंग यू, आपको सबके नाम याद होने चाहिए. आपको चाहिए तो एक पिक्चर आप एक बार देख सकते हो सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर द नेम्स. तो दिस इज़ बेसिकली फाइटर्स इन साउथ अफ्रीका. जैसे हमारे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पता होंगे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद. तो बस उसी तरह वहाँ के ये कुछ महात्मा हैं. एंड दे हैड
करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी जैसा कहीं और देखा ही नहीं है। एंड वो कहते हैं शायद इतना ज़्यादा ऑपरेशन झेलने के बाद ही इतने हाइट, इतने अच्छा कैरेक्टर, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग उभर के बाहर आते हैं। तो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे लोग जानते हैं कि रिच इन मिनरल्स, जेम्स, ये सब तो है ही, बट उनके हिसाब से द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट द कंट्री हैज़ इज़ एक्चुअली इट्स पीपल। यहाँ के लोग हैं, दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate. And if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो ये जो लोग हैं जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इनकी वजह से उन्हें नेल्सन मंडेला कहते हैं, मुझे असली मतलब पता चला बहादुरी का, करेज का। एंड उन्होंने बहुत बार देखा है men, women, they risk their lives for a purpose that they want to achieve. And they stand up to all the torture without breaking. And इस सब से उन्हें पता चला कि courage, बहादुरी is not the absence of fear, कि तुम्हें डर ही नहीं लगता। A brave man is the person who conquers his fear, जिसने जीत पा ली वो अपने डर पर। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो बस वही। एंड वो कह रहे हैं कि nobody is born hating another person, मतलब किसी कोई पैदा होते ही ऐसा नहीं होता कि हाँ ये पसंद ही नहीं है, इससे नफरत है, इसके स्किन कलर ये डार्क है, ये फेयर है, आई हेट दैट पर्सन, नहीं होता ऐसा। या इसका बैकग्राउंड रिलीजनरी, ये तो हिंदू है मुझे नहीं पसंद, ये मुस्लिम मुझे नहीं पसंद, ऐसा नहीं होता। लोगों को सिखाया जाता है हेट करना उनके सराउंडिंग से या जैसे भी। तो कहते हैं कि तुम हेट करना सिखा सकते हो, तो प्यार करना सिखाना तो और भी आसान है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट है उसको प्यार करना, टू लव कम्स मोर नेचुरली देन टू हेट। एंड इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, मतलब इन द टफेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब वो जेल में थे, ऐसा होता था कई बार कि उनको और उनके जो फेलो कॉमरेड्स थे उनको बहुत लिमिट्स तक पुश कर दिया जाता था। एंड तभी उन्हें किसी एक ना एक गार्ड की आंखों में कभी कुछ इंसानियत या ह्यूमैनिटी दिखती थी, भले ही 1 सेकंड के लिए, बट दिखती थी। एंड ये देखकर उन्हें लगता था कि हाँ आज भी इंसानियत जिंदा है और मैं जिस पर्पस के लिए लड़ रहा हूँ दैट इज़ वर्थ इट। दैट वुड गिव हिम रीअश्योरेंस। इन लाइफ every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not, in the beginning, choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. I was not born with the hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields,
near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars, and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated, just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He locked behind bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me. The oppressor and the oppressed alike are robbed of their humanity. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस यानी आपकी जो ड्यूटीज होते हैं, जो आपको करने, आपके कर्तव्य. एक होता है आपके परिवार, आपके पेरेंट्स, बीवी, बच्चे, उनकी तरफ, और दूसरा होता है आपकी जो सोसाइटी है, आपके समाज, कंट्री की तरफ. तो एक अगर नॉर्मल सेटअप होगा जहाँ पर इंसानियत के तौर पर लोग जी रहे हैं, तो ये दोनों ऑब्लिगेशंस लोग पूरे कर पाते हैं. बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था एक डार्क स्किन इंसान के लिए करना. अगर साउथ अफ्रीका में कोई डार्क स्किन इंसान एक ह्यूमन की तरह रहने की कोशिश करे तो उसे पनिश और आइसोलेट कर दिया जाता था. अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करे तो उसे अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था और उसे अकेले रहने को कहा दिया जाता. एंड इन द बिगिनिंग उन्होंने ऐसा चूज नहीं किया कि मैं पूरे समाज के फ्रीडम को अपनी फैमिली से ऊपर रखूँगा. बट जब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनके जो कर्तव्य हैं एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, वो सब उन्हें करने नहीं मिल रहे, दैट टाइम ही रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. वो कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से पैदा हुआ तब से मुझे था कि हाँ आज़ादी चाहिए. मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था. आई वॉज बॉर्न आज़ाद. मतलब when you are a kid, you're not told cannot do this, you cannot do that. You are born free in every way you could know. He could run in the fields, he could swim in the clear stream, roast mealies under the stars. The mealies is basically meat, and he could ride broad backs of slow moving bulls. जो करना था कर सकता है, as long as आप अपने पापा की बातें सुन रहे हो और जो आपके ट्राइब, आपके समाज के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है और लॉ के अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर रहे हो, भगवान के लॉज एंड ह्यूमन के लॉज. बट
धीरे धीरे जैसे उनका बचपन ख़त्म होता गया, उनका बॉयहुड ख़त्म हुआ, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये फ्रीडम एक इल्यूजन है. अब वो थोड़े एक यंग एडोलेसेंट बन गए, तब उन्हें उनके जो फ्रीडम उनको चाहिए थी वो थोड़ी अलग थी, और वो फ्रीडम लॉन्ग कर रहे थे. जैसे एज अ स्टूडेंट ही वांटेड कि मैं रात को बाहर रह पाऊँ, मैं कहीं भी जा पाऊँ. तो ये सारी बेसिक फ्रीडम उन्हें नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए उन्हें फ़ाइट करने की थोड़ी इच्छा जागने लगी. फिर जब वो एक ही ग्रो अ लिटिल ओल्डर, he wanted this freedom of marrying anybody he liked, having a family, of earning his keep, matlab of basically making salary, making money out of a profession. And freedom to not be obstructed in a lawful life. मैं लॉ के हिसाब से जी रहा हूँ तो मुझे जीने दो. बट स्लोली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे जैसे दिखने वाले सारे लोग ही इस कंट्री में फ्री नहीं हैं. एंड जब उन्हें ये सब दिखा तब उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वैसे अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी. एंड देयर ही थॉट ऑफ फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ द ग्रेटर गुड. ठीक है, तो हिज डिज़ायर फॉर फ्रीडम फॉर अदर पीपल एनिमेटेड हिज लाइफ, वॉट एनर्जी टू हिज लाइफ. एंड एक जो डरा हुआ यंग बच्चा था, वो एक बोल्ड एंड बहादुर बच्चा बन गया, जो एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी था. मीन्स ही वॉज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन. वो अब एक क्रिमिनल बन गया. क्रिमिनल मतलब ऐसा नहीं उन्होंने कुछ इनलीगल करने लगे, बट वाइट्स के हिसाब से तो आप मतलब एक इंसान जैसे जी रहे हो वो ही एक क्राइम है, तो इसलिए वो अपने आप को क्रिमिनल बुला रहे. मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, मुझे अपने फैमिली से प्यार था. अब मैं ऐसा इंसान बन गया जिसके पास घर ही नहीं है. आई वॉज फोर्स्ड टू लिव अवे. वो कह रहे कि मैं कोई ज़्यादा वर्चुअस या नहीं, आई एम नॉट सो फुल ऑफ मॉरल्स एंड वैल्यूज़, एंड मैं एकदम नेक इंसान नहीं हूँ, और ना ही मैं कुछ ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इंसान हूँ एज द नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट टू मी. बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे पास फ्रीडम नहीं है एंड मेरे पड़ोसी में किसी और के पास जो वो फ्रीडम नहीं है, तो मैं अपनी जो थोड़ी बहुत भी लिमिटेड फ्रीडम मुझे मिल रही है, मैं वो एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ. बिकॉज आई नो कि मेरे जैसे साथी आज भी आज़ाद नहीं है, एंड मुझे उन्हें आज़ाद करना था. आई वॉन्टेड टू फ्री देम फ्रॉम द चेन्स ऑफ ऑल दिस ऑपरेशन, एंड इसलिए ही चोज टू फाइट फॉर द कॉज. अब वो कहते हैं कि अगर जिस पर अत्याचार हो रहा है, जिसका फ्रीडम कर्टेल हो रहा है, उसको तो फ्री करना ही है. बट एट द सेम टाइम द पर्सन हु इज ऑप्रेसिंग द ऑप्रेसर, उस बंदे को भी हमें आज़ाद करना होगा. अब आज़ाद किससे करना है? फ्रॉम दीज बार्स ऑफ प्रेजुडिस, नैरो माइंडेडनेस, हेट्रेड. प्रेजुडिस मतलब आपको कोई चीज़ बस नहीं पसंद विदाउट एनी लॉजिक. मतलब दे डिडंट लाइक ब्लैक मैन विच वॉज इलॉजिकल. मतलब वो भी एक इंसान है, तुम भी एक इंसान हो, बस स्किन कलर अलग है तो क्या हुआ. लाइक मैन विमेन में, मतलब देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट. ये बस ऐसा है कि बस नहीं पसंद. तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो रॉब्ड ऑफ माई ह्यूमैनिटी. जस्ट लाइक द पर्सन जिसकी फ्रीडम ली जा रही है, दैट पर्सन इज रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी. एंड इस नोट पर चैप्टर ख़त्म होता है. ऑलराइट, बाय बाय.